Hello students, now we are doing chapter 12 from NCERT, that is linear programming problem. We have already learned about the linear inequalities in class 11th. Now linear programming problem. So what is the meaning of linear programming? The word linear means to say the relationship which can be represented by a straight line. यानी straight line is of the form ax plus by equals to c. In other words, it is used to describe the relationship between two or more variables which are proportional to each other. Programming means to say optimal allocation of लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पर क्या होंगे? लिमिटेड होंगे. ऐसा नहीं है कि हम उसको कितना मर्जी यूज करते रहें. ठीक है, उनका ऑप्टिमल एलोकेशन, दैट मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ऑप्टिमल मीन्स टू से जो एप्रोप्रिएट है. सो लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वे टू हैंडल सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल मेथड है for determining a way to achieve the best outcome. यानी जो भी इसमें आपको चॉइसेस दी होंगी उनमें से जो बेस्ट होगा उस आउटकम को अचीव करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग ज़रूरी है. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी दिस इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक used to obtain an optimum solution in resource allocation problems such as production planning and with limited resources to achieve organization objectives. यानी मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना या मिनिमाइज कॉस्ट करना. ठीक है, when solving a linear programming problem, program is put into a number of linear inequalities, means to say minimize or maximize the inputs. So this is the best outcome. So what are the requirements? There must be a well-defined objective function. There must be a constraint on the amounts. That means constraints जो भी उसकी availability है, जिस टाइप से availability है वो सब होने चाहिए. There must be alternative course of action, यानी कुछ ना कुछ उसका और अल्टरनेट भी होना चाहिए, तभी हम उसमें से बेस्ट निकाल सकते हैं. And the decision variables should be interrelated and non-negative, means to say all these variables are positive. The resources must be limited in supply. तो रिसोर्सेज जब तक हम लिमिटेड नहीं करेंगे तब तक हम उसका बेस्ट आउटकम नहीं निकाल सकते. Now, what is the objective function? Objective function यानी जो linear function होगा z equals to ax plus by, where a and b are the constants. इसी को ही हमने क्या करना होगा, इसी z को equals to ax plus by मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होगा. दैट मीन्स जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकलेगा वो z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई के अंदर पुट करके वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा. दैट इज कॉल्ड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट, डिसीजन वेरिएबल्स. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर ये x और y हैं, यानी जो सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यूज निकलेंगी, दैट आर कॉल्ड लीनियर डिसीजन वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स. जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं जो हमने 11th क्लास में भी स्टडी की हैं, द लीनियर इनइक्वालिटीज और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ एन एलपीपी आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स. सपोज आपको दिया जाए कि 5x plus 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 12. These are called constraints. And the condition कि x be greater than or equals to 0 and y be greater than or equals to 0. These are called non-negative constraints और non-negative restrictions. That means जो भी हमारे पास resources हैं वो हमारे positive होने चाहिए. Next is feasible reason. The common reason determined by all the constraints
जो भी कंस्ट्रेंट जितने भी दिए होंगे 1 2 3 इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो जो भी कॉमन रीजन होगा दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। नेक्स्ट इज फिजिबल सॉल्यूशन। जो भी पॉइंट्स हैं विद इन और ऑन द बाउंड्री, जो भी फिजिबल रीजन के अंदर के पॉइंट्स होंगे और उसकी बाउंड्री पर जो पॉइंट्स होंगे दैट आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। इनविजिबल solution, that means any point outside feasible region, that is called infeasible solution. Next is optimal solution. Any point in the feasible region that gives optimal value, that means जो जो points उसकी boundary पर होंगे उनसे जो भी optimal value निकलेगी, maximize या minimize जो भी करना है आपने, of the objective function is called an optimal solution. Now look at the example. Suppose you are given maximize z equals to 5x1 plus 7x2 such that constraints हैं आपके पास. फर्स्ट कंस्ट्रेंट है x1 is less than or equals to 6. सेकेंड कंस्ट्रेंट है 2x1 plus 3x2 is less than or equals to 19. एंड थर्ड कंस्ट्रेंट है x1 plus x2 is less than or equals to 8. एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं x1 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब 11th क्लास में जो हमने स्टडी किया था, हमने इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को लेकर जो भी आपके पास फिजिबल रीजन आता था उसको शेडेड करना हमने सीख लिया था. ठीक है, तो उसी तरह से हमने क्या करना है, x पहले फर्स्ट लेना है, x1 इक्वल्स टू 6 लेके हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है. x1 इक्वल्स टू 6, x1 आपके पास x एक्सिस एज अ एंड x2 एज अ y एक्सिस. तो x1 इक्वल्स टू 6 मीन्स टू से ये पॉइंट, तो x2 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 6 कुछ भी है. दैट मीन्स इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x2 एक्सिस. ठीक है, एंड आफ्टर दैट we put x1 equals to 0. That means 0 is less than or equals to 6. The result is true. So shade the region along origin. तो जिस साइड ओरिजिन है, क्योंकि रिजल्ट ट्रू है तो उस साइड हमने क्या कर देना है, इसको शेड कर देना है. तो हमने देखो इस एरो से पता लग रहा है हमने कि इस साइड शेड करनी है क्योंकि इसका ओरिजिन इस साइड है. और जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं कि x2 भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, x1 भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. इससे हमें पता लग गया कि हमने क्या लेना है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है. इज दिस ओके? नाउ नेक्स्ट, दैट इज 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 19. तो जैसे हम 9th और 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ करते आए हैं उसी टाइप से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. हमने यहाँ किया, एक बार x1 को 0 लिया. जब x1 0 है तो 3x2 इक्वल्स टू 19. दैट मीन्स x2 इक्वल्स टू 19, यानी x2 की वैल्यू आई आपके पास 6.33. तो 0 6.33 ये पॉइंट हो गया. नेक्स्ट आपने x2 को 0 पुट किया तो 2x1 इक्वल्स टू 19. दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू 9.5. तो 9.5 और 0 ये पॉइंट हुआ. तो दोनों पॉइंट्स को मिला के हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी. एंड आफ्टर दैट पुट x1 और x2 0 0. सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन 19. रिजल्ट ट्रू है. रिजल्ट ट्रू है देन शेडेड एरिया इज अलोंग द ओरिजिन. तो जिस साइड आपके पास ओरिजिन है उस साइड हमने उसको शेड कर देना है. नाउ थर्ड लाइन, दैट इज x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8. तो हमने क्या करना है, x1 एक बार हमने इक्वल्स टू 0 रखा, दैट मीन्स x2 इक्वल्स टू 8. सो योर पॉइंट इज 0 8. एंड when x2 is 0 then x1 is equals to 8. That means your another point is 8 0. So draw the line by plotting these points after joining these points, and after that put x1 or x2 equals to 0 0. So 0 plus 0 is less than 8. Result is true. So shade the region along origin.
तो जिस साइड ओरिजिन है उस साइड हमने इसको शेड कर देना है। अब तीनों ही लाइन से आपने जो कॉमन रीजन आया है वो आपने शेड कर देना है। अब देखो इस एरो से हमें पता लग रहा है कि ये रीजन हमारा क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि ओरिजिन के अलोंग आ रहा है सारा का सारा रीजन हमारा, और ये रीजन क्या हो गया हमारा, बाउंडेड। एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ तक का हम 11th क्लास में ऑलरेडी करके आए हैं। एंड आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि इसमें से जो आपके ये कॉमन बाउंड्री पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट को जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये पॉइंट है आपका 0.6.33। इज दिस ओके? एंड नेक्स्ट दिस पॉइंट इज ऑल्सो 60, ठीक है। एंड आफ्टर दैट you have to find out this cutting point and this cutting point। तो ये जो कटिंग पॉइंट है, ये दो लाइंस हैं आपकी, कौन कौन सी, एक तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 8 और दूसरी लाइन है आपकी 2x1 प्लस 3x1 इक्वल्स टू 19। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x1 या इक्वल कर दो, दैट मीन्स 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 19 हो गया। इन दोनों को आप जो 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, तो उस टाइप से आपने उसको सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट है आपका ये पॉइंट। इस पॉइंट में देखो आपके पास x1 तो 6 है और ये किस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 8। अब x1 6 है, देन x2 इज 8 माइनस 6 यानी 2, सो दिस पॉइंट इज 6, 2। तो इस तरह से आपने जो बाउंड्री पॉइंट्स है इसके वो फाइंड आउट कर लेने हैं। सो देखो वेरी फर्स्ट a दैट इज 0 0, b दैट इज 6 0 एंड c दैट इज 6 2 एंड d बाय एलिमिनेशन मेथड इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो हम 10th क्लास में ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं। एंड e दैट इज 0.6.33। सो दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स। नाउ पुट ऑल दीज पॉइंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 7x2। तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे 0 0 पुट किया हमने, 6 0 पुट किया, 6 2 पुट किया, 5 3 पुट किया और 0.6.33 ये पुट किया। इन 5 पॉइंट्स को पुट करने के बाद अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, ये 46 मैक्सिमम है इनमें से, तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, 5 3 पर। दैट मीन्स जो ऑप्टिमम पॉइंट होगा दैट इज 5 3 और ऑप्टिमल वैल्यू है दैट इज 46। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, minimize of z equals to 5x1 plus 2x2 such that 2x1 plus 5x2 is greater than or equals to 10 and 4x1 minus x2 is greater than or equals to 12, x1 plus x2 is greater than or equals to 4, x1 is greater than 0 or x2 is greater than or equals to 0. Now by previous example plot all the graphs। सारी लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। तो हर लाइन के अंदर देखो जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 10, रिजल्ट इज फॉल्स, दैट मीन्स शेडेड एरिया इज अपोजिट द ओरिजिन। नेक्स्ट 4 इंटू 0 माइनस 0, 0 इज ग्रेटर देन 12, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो रिजल्ट इज फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स है दैट मीन्स अपोजिट द ओरिजिन। नेक्स्ट ऑल्सो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो फॉल्स, दैट मीन्स अपोजिट द ओरिजिन। तो सारे जब आपके पास अपोजिट द ओरिजिन है तो कॉमन आपके पास ये रीजन बना, क्योंकि अगर इस लाइन से इधर आते हैं तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपका अपवर्ड है, लेकिन जब आप इस अपवर्ड को शेड करोगे तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये इसके डाउनवर्ड है, यानी अपोजिट साइड है, जिस साइड ओरिजिन है उस साइड चला जाएगा। तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कॉमन आपके पास क्या बनेगा, दिस रीजन बनेगा, like this. Now this reason, this is the case of unbounded feasible
reason. Now find out these boundary points. Very first A, वही उसी टाइप से दो इक्वेशंस को हमने किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करके, वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड से हमने दूसरे की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है. एंड सेकेंड बी पॉइंट दैट इज 50. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 2x2. तो इसके अंदर हमने ये दोनों पॉइंट्स पुट किए. दोनों पॉइंट्स को पुट करके हमारे पास वैल्यू निकल गई z की. तो जहां पर वो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो मैक्सिमाइज चेक कर लेना है हमने. मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो हमने मिनिमाइज चेक करना है. एक्चुअली में ये क्वेश्चन मिनिमाइज का है, बाय मिस्टेक यहाँ पर ये मैक्सिमाइज लिखा गया. तो मिनिमाइज ऑफ z दैट इज 17.364. तो ऑप्टिमल पॉइंट 35/11 और 8/11 एंड ऑप्टिमल वैल्यू दैट इज 17.364. One another example of unbounded region. Determine graphically the minimum value of the objective function z equals to minus 50x plus 20y subject to the constraints 2x minus y is greater than or equals to minus 5, 3x plus y is greater than or equals to 3, 2x minus 3y is less than or equals to 12, x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. तो सेम उसी वे से हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है. अब हमने ग्राफ प्लॉट करके इसका भी अनबाउंडेड रीजन ही निकला है. ये सारा कहीं से ये बाउंड नहीं हो रहा क्योंकि ये यहां से खुला है बिल्कुल, ठीक है. तो इसके जो पॉइंट्स निकले, एक आपके पास आया पॉइंट दिस वन 0.5, दिस वन 0.3 एंड नेक्स्ट इज 1.0 और नेक्स्ट है आपके पास दिस 6.0. तो हमने इन पॉइंट्स को z के अंदर पुट किया, z के अंदर पुट किया जिससे मेरे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज -300. बट अब हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या -300 इसका स्मॉलेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है. तो हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है कि z है जो -300 से भी स्मॉलेस्ट है. यानी हमने अपोजिट लेट कर लेना है कि -300 है जो वो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, कोई और है जो इससे मिनिमम है. सो प्लॉट -50x प्लस 20y इज लेस देन -300. ठीक है. तो हमने क्या करना है, उसके बाद देखो -5x प्लस 2y इक्वल्स टू -30. 0 से 0 कैंसिल होगी इन ऑल वेरिएबल ऑल कोफिशिएंट्स, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -5x प्लस 2y इक्वल्स टू -30. तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका ग्राफ है, डॉटेड लाइन का. तो इस डॉटेड लाइन के अंदर जब हमने इनइक्वालिटी ली यानी लेस देन -300, उससे भी छोटा है, तो उस जब लेस देन के अंदर हम 0 0 पुट करेंगे, -5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 हो गया. 0 इज लेस देन -300, रिजल्ट इज फॉल्स. दैट मीन्स शेडेड एरिया इज अपोजिट द ओरिजिन. तो देखो इस लाइन के, इस जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के राइट साइड में शेड हो जाएगा, इस साइड जो डार्क किया हुआ है. अब ये देखो जो पहले शेड थी वो लाइट वाली थी सारी, यानी ये, ठीक है. अब जो इस लाइन के इस साइड अगेन शेड करने से ये डार्क होगी, तो यानी इनका ये पार्ट है जो ये कॉमन पार्ट है. तो अगर कॉमन पार्ट आ जाता है यानी कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट निकल आता है, तब ये जो आपका -300 है ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है. अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता, ठीक है, तब -300 ही इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. सो लेट्स अगेन डिस्कस इट. हमने सपोज किया कि -300 है जो वो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, कोई और इसका सॉल्यूशन है. तो हमने उसके बाद क्या किया,
हमने ग्राफ ड्रॉ किया -50x + 20y इज लेस देन -300 का, और उसी तरह से हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की। इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमने शेड कर देना है जो भी रीजन आएगा। अब आपने जो पहले फिजिबल रीजन आया था और जो इस इनइक्वालिटी से रीजन आया है उसके कॉमन पार्ट को चेक करना है। अगर उसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट्स हैं तो -300 है जो वो इसकी ऑप्टिमल या मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तब यही इसका मिनिमम सॉल्यूशन है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है वो -300 ही है। आई थिंक सो इट्स क्लियर नाउ। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब ये देखो, इसके अंदर आपके पास, अभी हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये देखो आपके पास ये कॉमन आ गया, दिस पार्ट इज कॉमन, सो यू कैन से दैट कि -300 इज नॉट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ अनदर एग्जांपल, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 + 6x2 सच दैट 4x1 + 3x2 is less than or equals to 12 and 2x1 + x2 is greater than or equals to 8, where x1 is greater than or equals to 0 and x2 is greater than or equals to 0। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल में देखो हमने उसी तरह से ग्राफ बनाना है। हमने यहाँ 0 0 पुट किया, 0 is greater than 8, result is false, that means shaded area is opposite the origin। Next 4x1 + 3x2 is less than or equals to 12, that means 0 + 0 is less than or equals to 12, so result is true, so shaded area is along the origin। लेकिन इन दोनों में देखो कहीं भी आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आपके पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन नहीं आ रहा, दैट मीन दिस प्रॉब्लम इज नॉट हैविंग अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी दिस इज द केस ऑफ इनफिजिबल solution। Thank you and have a nice day। Now do question number 2nd, 4th, 8th, 9th and 10th from exercise 12.1 on your fair notebook।